हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो आईआईटी हैदराबाद कैंप्स टूर। बहुत कमाल की यार वीडियो, हमने शॉर्ट्स देखे थे, लेकिन आज एक कैंप्स का टूर करते हैं। तो करते हैं वीडियो भाई स्टार्ट। अभी मैं बैठी हूँ ऑटोनोमस गाड़ी में। आईआईटी स्टूडेंट है और ये टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। So let's see which team will win. नमस्ते मेरे चंद्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है, कैसे हैं? मैं आ गई हूँ आईआईटी हैदराबाद। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है आईआईटी हैदराबाद और जापान के बीच में कुछ संबंध है, और मैंने ये भी सुना है कि कुछ इमारतें जो है जापानी सरकार ने सपोर्ट किया बनाने के लिए। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। इंडिया भर के स्मार्ट पीपल यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। मैं उत्साहित हूँ यहाँ घूमने के लिए, तो शुरू करें। ये गाड़ी जो है बड़ा मजेदार है। ये साधारण ऑटो रिक्शा नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं बैठा है। अभी मैं बैठी हूँ ऑटोनोमस गाड़ी में। मुझे नहीं लगता कि जापानी यूनिवर्सिटी में ऐसे है, पता नहीं। मैं तो ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा समय हो गया। Amazing. The campus shuttle is about to leave in 5, 4, 3, 2, 1. Wow, it's amazing. अगर इमरजेंसी है तो गाड़ी रोक सकते हैं। ऑफ कोर्स ये ऑटोनोमस कार भी यहाँ आईआईटी हैदराबाद में बनाया गया है। So you are the engineers for building this autonomous car. What's the uniqueness of this car? It's fully autonomous, as you have experienced already, and we have deployed within the campus of IIT Hyderabad. It has AI stack which can detect the obstacle as well as it will react according to the obstacle. Indian road scenarios are quite different from other road scenarios. So according to road conditions, our vehicle react, and accordingly it will manage those like actuations parameter, and it will travel in autonomous mode. Also, maybe for animals, because there are so many animals in India. Yeah. This campus shuttle can drive autonomously 24/7. We want to give the mobility to the people who can access in the night time also. Very interesting. Thank you so much. You guys are doing amazing job. यह आज स्कूल का भ्रमण कराने वाले जीनियस लोग हैं। दरअसल आईआईटी हैदराबाद में जापानी प्रोफेसर भी हैं, कोतारो कताओ का प्रोफेसर, जो ब्लॉकचेन के बारे में सिखाते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोतारो जी अभी बिजी हैं, लेकिन उनके स्टूडेंट से मैं इंटरव्यू करने जा रही हूँ। I'm currently MTech research student, first year. In this semester, I'm learning about blockchain. I am working for inter-blockchain communication, increasing the security and developing a trustless system. So basically you're learning from Japanese professor about blockchain. Yes. So how is the experience? So far so good. He's a very good teacher. He follows a principle like practical knowledge is greater than whatever we read, and that's good because from textbook I don't think we can learn everything. So we have to do something. That's what we do under him. What I feel is, if you do one mistake, you're done. I mean, he'll catch you. He's that perfect. My name is Shuparna Kaur, and I'm PhD student under Dr. Kotaro sir, and I'm working on enhancing some IoT data's mechanism using blockchain. How is Professor Kotaro? I have learned a lot from sir. He's perfectionist, like she said, but even if you do not know something, he will help you. Means by himself he will sit by you and he will do things in your laptop, and he will let you understand the concept, and where you are doing some faults we'll make sure you understand that. और हाँ, टोक्यो यूनिवर्सिटी से आए हुए जापानी स्टूडेंट्स भी थे। वैसे टोक्यो यूनिवर्सिटी जो है जापान के सबसे उच्चित यूनिवर्सिटी है। मैं यहाँ पे पढ़ाई करने तक तो स्मार्ट नहीं थी, लेकिन एक बार जाके ना फोटोज खींचे हैं मैंने। तो देखते हैं ये लोग आईआईटी हैदराबाद में क्या पढ़ाई कर रहे हैं। リサーチインターンシップに来ているジョーヤと申します。今やっていることは、マルチモーダル AI の開発です。どれくらいいるんですか？期間は1ヶ月。お名前は？田辺智也と申し同ます。じ研究をされてる。研究は別で、僕は幸太郎先生の下でやってるんですけど、はい、ソフトウェアデファインドネットワークスっていうソフトウェア上のネットワークについて研究してます。
IIT कैसा है? टोक्यो यूनिवर्सिटी से क्या अलग है?いろいろこう初めはカルチャーショック的なものもあったんですけど、やっぱりこう何か問題というか、に当たるたんびに現地の学生の優しさには本当に救われていて、東大との一番の違いで言うと、もう本当に助け合いのネットワークがここに根付いていて、そこにこう、受け入れていただいたことで1ヶ月間過ごしやすく、そのいろんな問題があってもそれが苦でなかった。मुझे ऐसा लगता है कि IIT स्टूडेंट्स जो है ग्रेजुएशन के बाद या तो यूएस की कंपनी में जॉब लेते हैं या खुद की कंपनी शुरू करते हैं। जापानीज कंपनीज में काम करने वाले तो कम हैं। आपको कैसा लगता है? IIT स्टूडेंट्स जो है जापानीज कंपनीज में जॉब लेने में रुचि रखते हैं? 割にめっちゃ多いですね。多いですか？日本の会社で働きたいの。 सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि यूएस कंपनीज में ज्यादा पैसे मिलते हैं। जापानी कंपनीज में शुरू से 1 करोड़ रुपए के आसपास कमाना बहुत मुश्किल है। ऐसा कल्चर ही नहीं है ना। 一番多分鍵になっていたのは、多分彼らが日本に行ったことがある。で、その桜サイエンスとかいろんなこう日本に行く機会があるんですけど、学面だけを数字で見て捉えるのって多分両方行ったことがないからだと思うんですよね。だから日本に行けば学面以上のいろんな多様な軸を持つことができて、多分彼らの中で何か生活の質であるとか、他の何かの要素が刺さってやっぱり日系にしようみたいなケースはよく話を聞いていて、僕が思っていることですね。いや、すごい貴重なお話、実際のそのフィールドの話聞けて嬉しいです。ありがとうございます。頑張ってください。यहाँ 3 IIT स्टूडेंट्स हैं और 3 टोक्यो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। So let's see which team will win. Some questions. Okay. So starting with mathematics. So I will use calculator. And okay. 59 multiplied by 64 equal. अब पता चलेगा। Raise your hand, guys. Raise your hand. 59 yes. 3776. Correct. Indian team. One more question. दूसरा सवाल भी मैथमेटिक्स, क्योंकि मुझे बहुत मजा आ रहा है। 107 multiplied by 86. 107 multiplied by 86. This is so much fun. 頑張れ東大生。はい。 1402. Wrong. Wrong answer. Yeah, 9. they have an answer. 9202. Right. The next question will be What was the number of travelers from India to Japan in 2024? ये टीम के अंदर डिस्कस करेंगे और एक आंसर दे देंगे। जो टीम सबसे नजदीकी संख्या बताता है वो जीतेगा। In 2024, Japan to India, the total number of travelers was 1.5 lakh, approximately. okay. It's safe to say both teams have agreed in one number. So tell us your number. 2.5 lakh. 2.5 lakh. Hey. 1.5 lakh. 1.5 lakh. The answer is 2.3 lakh. ये है लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्लासेस होती है और ये इमारत भी जापानी सरकार की मदद से बनी है। तो चलो अंदर देखते हैं। वाह। आप लोग आगे बैठना पसंद करते हैं या पीछे बैठना पसंद करते हैं? पीछे? But is it difficult to pass all the exam and proceed to the second year? The professors make it so that it's easy to pass but difficult to score A's and A pluses. So it's not like you're constantly worrying about can I pass the exam or not? It's not that hard. But you guys are super smart, right? Like ये ज्यादा टिपिकल क्लासरूम टाइप कमरा है। तो मैं यहाँ के फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से सवाल पूछूंगी। how are you enjoying IIT Hyderabad? Do you think it's like the best university, the best decision you ever made? What do you think? We can explore more things and we can do many projects while participating in many club activities. Are you interested in working in Japan? You can be honest. Not so much. Okay, I got it. What do you want to do in future? I wanted to become an AI engineer. AI engineer. In your opinion, which country pays the most
I think America. America. So not Japan. I don't know about Japan. Okay. Thank you so much. Hi. Professor, I know the answer. 1 + 1 = 2. ये रिसोर्स नॉलेज सेंटर है, बेसिकली लाइब्रेरी है। और देखिए ये बहुत सुंदर खूबसूरत कूल इमारत जो है ये एक्चुअली जापानी सरकार की मदद से बनाया है और आर्किटेक्चर भी जापानीज है। तो देखते हैं अंदर कैसा है। सकते हैं। ज्ञान संसाधन केंद्र। Very nice library, na? Yeah. It's very cool design. How often do you come to this library? Mostly during exam periods. अच्छा, तो किताब पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए ज़्यादा आते हैं। अच्छा। There's a Japanese collection right there. Can you show us? Yeah. Okay. That's right. Japanese collection. Japanese manga भी है यहीं पे, लेकिन खोला क्यों नहीं? फिर पढ़ाई में बिजी है इसलिए नहीं मंगा नहीं पढ़ते होंगे। क्यों हंस रहे हैं? सही है? बिजी है पढ़ाई में। और ये जो है जापानी जेन गार्डन से आइडिया लेकर बनाया गया था। हाँ, वाकई मिलते जुलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटरです ये है जापान डेस्क। ऐसे विद्यार्थियों को मदद करने के लिए जो जापानीज कंपनीज में जॉब लेना चाहते हैं या स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं या तो इंटर्नशिप करना चाहते हैं जापानीज कंपनीज में, तो थोड़ा अंदर जाके पूछेंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज किया जाता है। वेलकम टू जापान डेस्क। और मुझे IIT हैदराबाद के डायरेक्टर से इंटरव्यू करने का मौका मिला है। हिंदी आता है आपको? जी, मैंने हिंदी में BA किया है। अरे वाह, हिंदी में BA किया है? हम भी नहीं किए। ओसाका यूनिवर्सिटी में फैकल्टी है हिंदी। ओसाका यूनिवर्सिटी में हिंदी डिग्री भी है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप बैठिए ना। सॉरी, प्लीज। तो नमस्ते, आपका कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ इंडिया और जापान के संबंध के बारे में इसी हैदराबाद IIT में। IIT Hyderabad Japan connection started when Abe-san, your previous Prime Minister, visited India in 2007. I heard that he visited in September 2007 and met our Prime Minister. That time it was our Dr. Manmohan Singh was the Prime Minister. And in the discussions, I came to know that they wanted to support, Japan wanted to support one of the higher education institutions, particularly an IIT, with some financial support and also a research support. And that was the time Indian government was thinking of bringing out about 8 new IITs. So we came into existence in 2008. Along with us, 7 more IITs came into existence. So maybe that time the Prime Minister of India must have mentioned to him that we are coming up with newer IITs. If you want to possibly pick up one of them, and you can pick up one of them and then possibly we can collaborate. Maybe that was the thing. We also do not know. There is no recorded information about that. The whole thing started in 2012 by signing an MOU with JICA, Japan International Cooperation Agency, and IIT Hyderabad. And we were given some Japanese yen loan. It is called ODA loan to the government of India for academic buildings and hostels, lecture hall complex and guest house and convention center, all of them sports complex, every one of them, which we call it as phase 2 construction. 85% of the money came from the JICA and 15% came from Indian government. Amazing. But what is more important than construction is a friendship program that JICA and IIT Hyderabad have signed. First phase of friendship program was from 2012 to 2021, almost close to 10 years, where a lot of student exchange, faculty exchange has happened, and a large number of patents, publications have happened. In addition, Japanese industry got connected to IIT Hyderabad. From 2018, every year we have a Japan Day, where almost 25 companies come from Japan to recruit our students. Wow. This is the only IIT possibly in the country where a large number of Japanese companies come to recruit our students. In fact,
fact that Japan Day, in the last 2 years, we have converted into a Japan Week, and then now we call it as Japan Month, where a large number of activities happen in that particular 1 month. One more important thing that we want, now that we have a strong collaboration already established, we have more than 40 MOUs with Japanese universities. No other institution in India has so many MOUs with Japanese universities. So we want to now act as a hub for Japan to India. So we want to see that IIT Hyderabad is a window or a door for the Japan to get connected to India, and we have started a number of activities in that particular direction. I'm looking forward more and more students in Japan. Thank you so much for your time. मैं आ गई हूँ नेक्स्ट भारत सुजुकी इनोवेशन सेंटर। लेट्स गो। Next Bharat Ventures is an impact fund of Suzuki Group which invests in impact entrepreneurs who are solving problems of the next billions in India. IIT हैदराबाद और सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया और जापान के संबंध को और बेहतर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। मैं IIT हैदराबाद से जापान वापस आ गई हूँ और काफी मजा आया। एक तो फैसिलिटी बहुत नया, सब बहुत सुंदर, नया फैसिलिटी अच्छा बढ़िया था। वैसे टोक्यो ऐसे ही था भाई, वीडियो बहुत कमाल की है। और देखो ना यार, जब भी हम एक डेवलपमेंट कंट्री का सुनते हैं ना तो इनमें जापान, इंडिया, अमेरिका, ये सारी कंट्री आ जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चीज़ जो एक शॉट करती है ना वो यही चीज़ होती है कि यार ये कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं। यार देखो उन कंट्रियों की मतलब के बेसिस देखो, कितनी उनकी जड़ें कितनी उन्होंने फैलाई हुई है कि जहाँ से भी उनको पता चलता है ना कि इधर से एक डेवलपमेंट बंदा निकलना है, इधर से एक बंदा हमारे लिए एक फायदा मंद है, तो भाई अपने पैसे से वो उधर सारा खर्चा करके उधर से लोगों को ले आते हैं। अब देखो ये जापान ने खुद IIT बनाई हुई है, इंडिया का भी है हिस्सा, और जापान ने भी इतना मतलब के पैसा इधर लगाया। उसका फायदा क्या है, उनको पता है कि भाई इंडिया के स्टूडेंट अपर क्लास के भाई एक उनका लेवल होता है बहुत लाइक, और एक इंजीनियर टॉप के होते हैं जो कि भाई हमारे मुल्क को कल फायदा देंगे। थोड़ा सा उन्होंने देखा है भाई, उन्होंने सारी चीजें मतलब के फैला दी हैं। तो देखो यार इनकी एक जड़ें कितनी एक फैली हुई हैं। अब इधर जब भी एक इंजीनियर भाई एक बन जाता है ना तो उसकी स्टार्टिंग तनख्वाह मतलब के सैलरी 1-1.5 करोड़ बन जाती है। बहुत सारी सैलरी है, स्टार्ट से ही 1 करोड़ 1.5 करोड़ आपको सैलरी मिल जाती है, जो कि भाई इधर से इसने मतलब कि अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है, इंजीनियर बनना है, इधर से कंपनी लाइन में लगी होनी है कि भाई हमारी कंपनी में आओ, हमारी कंपनी में आओ। हाँ, ताकि हमने स्टूडेंट्स देखे जो कि इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, ना अमेरिका की कंपनी में ना जापान की, कि हम अपने मुल्क में रह जाएं, तो वो भी एक अच्छा है क्योंकि हमने मुल्क में भी भाई बहुत उनको सहूलतें मिल जाती हैं। बिल्कुल यार, कमाल है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और स्पेशली मायो ने भाई एक IIT में जाकर मतलब विजिट किया। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि जो स्टार से जिस गाड़ी के में बैठकर वो अंदर गई है ना, वो बिल्कुल भाई वहाँ का इंजीनियर भी वही लड़का था जिसने वो रेडी की थी। उसने जस्ट बताई लोकेशन, वो सीधा वहाँ लेकर चली गई भाई। अब देखें कि एक प्रैक्टिकली वो कितना ज़्यादा काम कर रहे हैं अंदर, और बहुत ज़्यादा एक डेवलप है। मतलब AI चाहे जितना आगे चले जाए भाई, AI के भी वो एक इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हर तरह से उनका यही है कि गोल यही है कि भाई हमारी स्टार्टिंग तनख्वाह जो एक सैलरी है ना भाई, वो 1 करोड़ ही हो। सैलरी को छोड़कर अब जब भाई उन्होंने देखा है ना कि AI आ गया है, तो भाई उन्होंने AI का निचोड़ निकाल देना है। यहाँ तक कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अभी पीछे रह गई हैं, हमारा मुल्क खास करके, और भी कंट्री। अब अमेरिका देख लो, उधर भाई लोग काफ़ी एक कम इंटरेस्ट लेते हैं स्टडी में। अब उन्होंने ठीक है AI बहुत मतलब कि स्पीड से चल रहा है, लेकिन भाई इधर लोग स्टूडेंट इंजीनियर बन रहे हैं, वो भी AI के। इमेजिन करो भाईजान, वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो है ये जो IIT टोक्यो यूनिवर्सिटी है ना, जहाँ पर उन्होंने विज़िट किया है, वहाँ पर उन्होंने जब स्टूडेंट से सवाल किया है ना, वो रियाजी के सवाल थे, उनको जो पानी थे उनको बेचारे ज़रब देनी नहीं आई। ठीक है, उनको वो ज़रब देना नहीं आया। 3 सवाल उसने किए, 3 बार ही उन्होंने रिजेक्ट जवाब दिया है।
तो दूसरा मेरे भाई जब उसने अब लास्ट में सवाल किया ना कि आप जब ये IIT करके पास कर लेंगे तो आप कौन से कंट्री में जाना पसंद करेंगे, तो इंडिया वाले जो तो उन्होंने कहा कि हम अपने मुल्क में ही रहेंगे, तो जो अपना जापानी थे उन्होंने कहा हम कि USA में जाएंगे। नहीं, इंडिया के वो स्टूडेंट था, इन्हें बोला कि इधर जो कंपनीज है ना खास करके अमेरिका और जापान की है, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन मिला तो हम एक अपनी चॉइस कर लेंगे। अगर हमारी कंट्री में उससे ज़्यादा हमें सहूलत मिल जाएगी तो भाई हम इधर ही रह जाएंगे। अब क्या होता है कि जब भी एक बड़ी कंपनी पिकअप करती है ना इंजीनियर वगैरह, चाहे जापान की है चाहे अमेरिका की कंपनी है, सैलरी तो वो अच्छी दे देते हैं, लेकिन उधर लाइफ भी काफ़ी टफ होती है, उधर आपको टैक्स बहुत पे करना पड़ता है। लेकिन इंडिया का उनको 45 लाख या 50 लाख ही मिल जाए ना तो उनके लिए बहुत बेहतर हो जाता है। नहीं, ऐसे जो भाई यहाँ से एक ग्रेजुएट होते हैं ना, जो पढ़ के यहाँ से निकलते हैं तो उनके ख्वाब भी करोड़ों जैसे होते हैं भाई। मेहनत ही उनकी इतनी हो जाती है जब उनके पीछे रह ही कुछ नहीं जाता। ऐसे ही करोड़ों की सैलरी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और देखो ना, मेन चीज़ होती है एक डिग्री का मेयार बनाना। तो भाई इंडिया ने इस चीज़ के ऊपर ज़रूर मेहनत की है कि उन्होंने यहाँ से एक अच्छे इंजीनियर जो है ना वो निकाले हैं, जो कि मतलब पूरी दुनिया में फैले हुए भी है। लेकिन ये नहीं कि वो बाहर ही जाते हैं ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम अपने कंट्री के अंदर ही एक काम कर रहे होते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि भाई ज़्यादा अब कंपनी जो है ना वो इधर डेरे लगा रही हैं धड़ाधड़। आज मैं देख रहा था कि जो टेस्ला कंपनी है ना, कि वो कुछ दिन पहले हमने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, उसका ऑफिस ओपन हुआ था, तो 600 कारों के ऑर्डर जो है ना वो अब तक हो चुके हैं। जो पहली शिपमेंट आएगी 600 कारें आएंगी एक मतलब एक इतने ऑर्डर उसके हो चुके हैं। तो मतलब ये कि भाई फॉरेन कंपनीज जो है ना वो धड़ाधड़ अब इधर बैठ रही हैं, क्योंकि एक यहाँ पे एक टैलेंटेड भाई लोग मिल जाते हैं। आप देख लो जिस तरह वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन उन्होंने किए हैं, रियाजी भाई हमारे जो इधर मैथ है ना उसको रियाजी बोलते हैं, पाकिस्तान में ना उर्दू में उसको रियाजी बोलते हैं। तो वो जो उन्होंने क्वेश्चन किए देख लो भाई, यहाँ जो साथ लड़की खड़ी थी ना वो वैसे तरीके से वो उंगलियों पे गिनती लगा रही थी ना वो मतलब। लेकिन ये कि भाई ने एक अच्छे आंसर दिए हैं। बाकी भाई मायाओं की बात करें तो भाई उसको काफी लगा हुआ है इंडिया के अंदर, बल्कि वो शिफ्ट हो गई है मुंबई में। वो कोई व्लॉग नजरों से गुजरा था कि वो मतलब उधर से इधर शिफ्ट हो गई है। लेकिन भाई उसने देख लो एक डिग्री हासिल की और साथ ही उसको बहुत ज्यादा भाई इंटरेस्ट है इधर यहाँ का कल्चर देखने का या सारी चीजें देखने का, और कंपैरिजन भी वो बनाती है। बाकी भाई अच्छी वीडियो थी, वीडियो भाई बहुत अच्छी है भाई। लेकिन भाई जो स्टूडेंट IIT कर रहे हैं ना भाई हैदराबाद के, भाई कमाल का स्टूडेंट है। और भाई उन्होंने जब इंटरव्यू में किया है कि आप इधर से जब पास होंगे तो आप क्या करेंगे, अपना USA जाएंगे या जापान जाएंगे। भाई उन्होंने कहा कि हम इधर अपने मुल्क में अपना जो है ना कारोबार करेंगे, बेहतरी करेंगे भाई, हम कहीं और नहीं जाएंगे। लेकिन भाई करना भी इस तरह चाहिए कि जब आपके अपने मुल्क में काबिलियत को अपने भाई अपने जो आपके पास डिप्लोमा है इज्जत मिलती है तो भाई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई जो इधर अपना पाकिस्तान में भाई ये सब कुछ तो नहीं है क्या, तो ना भाई इधर कोई डिग्री को अपना कोई अहमियत देता है ना किसी को और को। भाई इधर तो भाई बस रिश्वत और सिफारिश ही चलती है। अगर कोई पढ़ लिख कर कोई अगर काबिलियत हासिल करता भी है तो वो भाई अपना या बाहर चला जाएगा या भाई वो अपना कोई कारोबार करेगा, उसे ये अपना या तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, जब मिलेगी तो सिफारिश और रिश्वत तो बगैर कुछ भी नहीं मिलेगा भाई उसे। और भाई पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, भाई यहाँ पर भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं या काफ़ी अच्छी डिग्री लेते हैं, लेकिन उनमें ये होता है कि जो जिसको पता है कि भाई मैं एक अच्छा पढ़ने वाला लड़का हूँ, वो यही करता है कि यहाँ से कोई अच्छे कोर्स कर सके यहाँ से निकल जाता है, जितने भी लड़के हैं। और आप देख लें हमारे गांव के भी लड़के हैं जो भाई काफ़ी एक बड़ी पोस्ट पर लगे हुए हैं। एक हमारा इधर वो हाफिज हम जिसको बोलते थे भाई एटॉमिक एनर्जी में, वो यहाँ पे लगा था, काफ़ी बड़ा ट्रैक्टर या यहाँ तक लगा था। उसने थोड़ी यहाँ जॉब की है, उसने बोला भाई फ्यूचर नहीं है, भाई वो सीधा यहाँ से चला गया, वहाँ शिफ्ट हो गया। उसको भाई वहाँ पे उसको इधर कोई करोड़ से भी ऊपर की सैलरी वहाँ मिल रही है, तो उसको क्या ज़रूरत है। इधर वो आते हैं जो डॉक्टर आते हैं जिन्होंने भाई वो जो बेरहम होते हैं, जो लूटने वाले बंदे होते हैं,
आपको वो लूटेंगे इधर थोड़ी थोड़ी एक भाई डिग्री लेकर। जो अच्छे पढ़े लिखे हैं वो भी इसी तरह प्रेफर करते हैं भाई बड़ी कंपनीज में जाकर अपनी जॉब करते हैं, वहाँ पे उनको एक इतनी ज़्यादा एक सैलरी मिलती है। और एक बड़ा कंपैरिजन ये कि भाई जैसे अमेरिकन कंपनी वहाँ है ना, यहाँ भी एक वो हायर बंदे करती है, लेकिन जो यहाँ पे टॉप का है उसको भाई 1 लाख तक दे देते हैं, इधर का 1 लाख, लेकिन वहाँ वो रखते हैं 3 लाख 4 लाख, इधर का भाई 12-14 लाख रुपया बनता है। इतना बड़ा एक कंपैरिजन है क्योंकि वहाँ पर एक जो स्टडी है ना वो काफ़ी हाई लेवल की है। नहीं फिर भी यार एक वो जब इंटर हुई है ना तो एक पता चला है कि स्टूडेंट हैं, एक स्टडी कर रहे हैं, एक जो बॉडी लैंग्वेज होता है ना उससे पता चल जाता है कि एक इंग्लिश यार देख लो कितनी उनकी हैवी इंग्लिश है। एक बंदा नहीं थोड़ा सा भी एक अड़ा या उसने इंग्लिश थोड़ी बहुत मतलब कि थोड़ी बोली हो, आगे वो गए हैं भाई डायरेक्टर साहब के पास भी, उन्होंने कितना अच्छे से प्यार से उनसे बात की है। तो ये चीज़ें बहुत एक मायने रखती हैं। बहुत प्यारी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।